السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے فقط ایک احساس، جسے لکھا ہے امبرین امبر نے۔ چلے جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ کامن تمہارا برتھ ڈے اور ہمیں یاد نہ ہو، بھول سکتا ہوں بھلا؟ اس نے ایک تشکر بڑی نظر پسی پر دوڑائی جو نشا کے نام کے ساتھ 15 اپریل کی ڈیٹ بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ اوکے یار، مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے۔ اس نے فارمیلٹی نبھائی، مگر دوسری جانب سے جس لغاوٹ سے تھینکس اے لاٹ کہا گیا اسے مزہ ہی دے گیا، اور ڈنر کا ٹائم فکس کر کے اس نے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ اس نے ٹی شرٹ کے کالر تھوڑے فولڈ کیے اور ایک ادا سے سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ موبائل اٹھانے کے لیے اس نے سائڈ ٹیبل کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نظر غزل کے میسج پر پڑ گئی۔ آئی مسنگ یو، پلیز کم بیک ایز ارلی ایز پاسبل۔ وہ قدرے مسکرایا اور سیم ہیئر کا میسج غزل کے موبائل پر بھیج کر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھا۔ ارسل بیٹا جلدی آؤ، کب سے وردا نوٹس پکڑے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ماما کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ خوب جانتا ہوں میں، میری ہاسٹل سے چھٹی کے ان چند دنوں میں ہی وردا کو کون سے نوٹس سمجھنے ہیں مجھے۔ پھر رنگت دراز قد، کشادہ سینہ، سیاہ سلکی بال، براؤن آنکھیں اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ لڑکیوں کی سے گفتگو کے تمام گر بھی جانتا تھا۔ کون کافر نہ مر مٹے تم پر ارسل عرفان۔ اس نے ایک نظر قد آدم آئینے میں اپنے سراپے پر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہیلو وردا ڈیئر۔ وہ ایک ادا سے چیئر کھینچتا اس کے پاس بیٹھا تو ایک لمحہ بھر کو وردا کی نظریں جھپکنا ہی بھول گئیں۔ گرے اور بلیک امتزاج کی ٹی شرٹ نے اس کی دمکتی رنگت کو مزید کھلا دیا تھا۔ اب پورے 2 روز لیٹ آئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم 15 ڈیز کا ریٹنگ پیریڈ تھا اور آپ پورے 17 ڈیز کا۔ میرا مطلب ہے پڑھائی کا حرج ہوتا ہے نا، اس لیے۔ وردا نے چہرے پر اس کی شو نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے سنبھالی۔ آئی نو، تمہیں شدت سے انتظار ہوتا ہے میرا۔ میں بھی بہت اداس ہو جاتا ہوں کراچی کے لیے، مگر ڈیئر جیسے آپ کو اپنی اسٹڈیز عزیز ہے، اس لیے ہمیں بھی کچھ پڑھنے لینے دیں آپ۔ بس کچھ نوٹس مس ہو گئے تھے، وہ کمپلیٹ کرتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی۔ اس نے ایک نگاہ رسٹ واچ پر دوڑائی۔ 10 بج چکے تھے اور 10:30 اس نے نشا کے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ وہ کیا ہے کہ تم نوٹس کال سمجھ لینا، ابھی مجھے ایک دوست سے کام ہے کچھ۔ دوسری جانب جس طرح سے منہ بنایا گیا وہ جو اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا فوراً بام گیا۔ دراصل ابھی میں عجلت میں ہوں اور میں نہیں چاہتا تم سے عجلت میں گفتگو کروں۔ بقول شاعر نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی اور نتیجہ حسب منشاء نکلا۔ معصوم چہرے پر شرم کی لالی دوڑ گئی، جھیل سی نگاہوں پر پلکوں کی جھالر لرزنے لگی۔ وردا، یو آر دی بیوٹیفل گرل آن دس ارتھ۔ اس کے گداز ہاتھوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے ارسل نے اس جذب سے کہا کہ لمحہ بھر کو وردا کی دھڑکنیں تھم کر بحال ہو گئیں۔ اوکے ڈیئر، کل ملیں گے۔ وہ محفوظ ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مگر جانے سے پہلے چین میں اپنی اور نشا کی تصویر والا پینڈنٹ ڈالنا نہ بھولا۔ یہی تو تھا ارسل عرفان اینڈ کو، وہ حکمران MBA فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جسے خدا نے دنیاوی دولت کے ساتھ حسن کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا، اور اس کا ادراک اس کے گرد منڈلاتی لڑکیوں نے اسے بخوبی دلوایا تھا۔ محبت میں وہ مساوات کا قائل تھا، یعنی کسی بھی ذات، رنگ، نسل کے امتیازات بالا تر ہو کر محبت کرنا۔ وہ اپنی کلاس فیلو کہ باقی احمق لڑکوں کی طرح ذات پات رنگ نسل کے چکروں میں پڑنے والا نہیں تھا۔ کسی بھی عمر یا کلاس کی لڑکی سے اس سے لفٹ مانگتی تو وہ دیدہ دل نچھاور کر دیتا۔ بقول اس کے لڑکیوں کے معاملے میں میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ کم اند اظفر، میں بیوقوف نہیں بناتا، قسم لے لو کسی سے بھی شادی وادی کا وعدہ نہیں کیا میں نے، اس نے اپنی کلوز فرینڈ اظفر کے جواب میں کہا، مگر جس جذب اور سٹائل میں تو بات کر رہا ہے اس سے کوئی بھی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ قسم سے یار، کہاں سے آگے تم اتنے گر؟ اظفر نے پیپسی کا ٹن منہ سے لگاتے ہوئے کہا، گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس نے شانے جھکاتے ہوئے کہا، مت کر ارسل، ایسا رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہیں تمہارے پیچھے، اور پھر کسی نے جان گنوا دی نا تو چین تمہیں بھی نہیں آئے گا۔ یار اظفر، تم کیا مڈل کلاس والی باتیں کرتے ہو، اور ویسے بھی کوئی مرتی ورتی نہیں کسی کے پیچھے۔ تم کیا سمجھتے ہو جو آج مجھے لفٹ کروا رہی ہیں کل کو کوئی ان کی زندگی میں آیا تو وہ چانس سے اویل نہیں کریں گی؟ منزا کو دیکھ لو، مر رہی تھی میرے لیے، اور کل ہی ایک لڑکے کے ساتھ اس قدر بے تکلف سٹائل میں دیکھا کہ خدا کی پناہ، جیسے ہم انجوائے کرتے ہیں ایسے ہی انجوائے کرتی ہے۔ مائنڈ اٹ اینڈ انجوائے اٹ۔ ایسا نہ ہو تیری میری دوستی اس پوائنٹ پر اینڈ کو پہنچ جائے، کیونکہ میرے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے کڑیوں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ارسل نے ایک کشن اظفر کی جانب اچھالتے ہوئے کہا تو لمحہ بھر کو دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ دیکھو اب نہیں تو پھر کب؟ رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا ہے تمہارا۔
माय ग्रेट मॉम, शादी भी हो जाएगी, बस कुछ रोज़ रुक जाए। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपनी चॉइस बता दो, मैं कोई रवायती माँ नहीं हूँ, तुम अपनी पसंद तुम पर मुसलत कर दूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मोमना अपने नाम की तरह बाहया और बाकिरदार है, ऊपर से इंतहा खूबसूरत। मैं मिडिल क्लास की लड़कियों को इसलिए बहू बना रही हूँ क्योंकि हमारी क्लास की बहू नहीं चल सकेगी हमारे साथ। तुम्हारे पापा की डेथ के बाद तुम ही तो मेरा वाद सहारा हो, अगर ऐसी वैसी लड़की तुम्हारी बीवी बना दी तो खुद सारी ज़िंदगी सहारे में रहूँगी। मिसेस इरफान हालसन बिजनेस डीलर की ज़ुबान में मोहब्बत में सौ दो ज़िया की बात करती लग रही थी। शोहर की वफ़ात के बाद लाखों का बिज़नेस उन्होंने कितनी कामयाबी से संभाला था। अच्छा बाबा कल चलना है, मिल दूंगा, फॉर गॉड सेक अब तो जाने दे। इसने मामा को टाला क्योंकि इसकी नई नेट फ्रेंड मरियम ने इसे मकनोल्ड में मिलने को कहा था और टाइम ओवर हो रहा था। ठीक है जाओ, मगर कल ठीक 5 बजे जाना है। मामा ने इसके कान में उड़ते हुए कहा। वो जान छुड़ाता हुआ बाहर भागा। बाय गॉड अरसल, वो मर जाएगी, इतने संगदिल भी ना बोलो। इसने फॉरेन को क्वालिफाइड डॉक्टर का प्रपोजल रिजेक्ट किया है, तुम्हारे लिए कह रही थी। तुम ना मिले तो कुछ भी कर जाएगी। असफा ने इसे समझाते हुए कहा। बस कुछ रोज़ फाके करेगी, शौक बनाएगी और फिर तो नहीं और सही, और नहीं और सही। गजल सिर्फ मेरी दोस्त है, मैंने कोई पैमान नहीं किया इससे उम्र भर साथ निभाने का। देखो वो वेल ऑफ है, एजुकेटेड है और सच्ची बात तो ये खूबसूरत भी है। फिर ये कि असफर आलम साहब, आपको इसमें इतनी खूबियाँ नज़र आ रही हैं तो आप अपना लें इसे। बगौर तुम्हारी खूबसूरत है तो कसम से इसकी आंखों को झील या होंठों को पंखड़ी गुलाब से तशबीह देकर देखो। अगर वो तुम्हारे ना बन गए तो पूरे का बुरा असल अपना दिल गज़ल अरजाज के जाज में हार देगा। इसने असफर की बात करते हुए कहा। 20 पूरे के पूरे। असफर जानता था इस पर कोई असर नहीं होने वाला। माय डियर असफर, जो मैं समझता हूँ वो तुम नहीं समझते। ये मुरज़ा, निशा, गजल या बरदा जैसी लड़कियाँ क्या होती हैं, इनकी मोहब्बत इन्हीं जैसी लम्हाती होती है। इन्हें सिर्फ एक जंस मुहालफ चाहिए जो इन्हें सराहे, जो इनको एहसास दिलाए कि इनका मुतनासिब सरापा सभी पेशानी झील से आके किसी की नींद उड़ा देती हैं। इस मकसद के लिए इन्हें सिर्फ एक मर्द चाहिए, अगर वो मेरी तरह वेल ऑफ और खूबसूरत भी हो तो ये चांस क्यों ना हासिल करें। बात करते हुए इसने यूं ही घूम कर देखा। हाथों में नोटिस था। में बरदा रहमान के चेहरे पर एक रंग और आ रहा था। इसकी पत्थराई में निगाहें धुआं धुआं चेहरा देखकर बाकी का तो जजिया मुंह में रह गया, मगर वो तेजी से वापस भागी। ओ गॉड, अरसल के मुंह से बेसहाता निकला। क्या हुआ? दूसरी जानब रिसीवर थामे असफर ने पूछा। यार वो बरदा रहमान। क्या बरदा? असफर तमाम सूरत हाल जान गया। बच्चों अरसल इरफान बद्दुआ के हिसार से जिस तरह दुआ हिसार में ले रखी है, बद्दुआ का हिसार भी इतना ही मजबूत और अटूट होता है। मगर वो भी देहानी में कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी के आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। मुर्दा रहमान का उतरा हुआ चेहरा निगाहों से नहीं हट पा रहा था। इसकी मासूम सूरत, हैरान आंखें। उफ़ खुदाया, मैंने सब लड़कियों को एक ही जैसा क्यों समझा था? अगर वो मुझसे मोहब्बत की गलतफ़हमी में मुब्तला हुई थी तो मैंने ऐसे हालात पैदा किए थे कि वो मुझे चाहे। और ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो गिल्टी फ़ील कर रहा था। दिल को खिलौना समझकर खेलने वाला अरसल इरफान टूट और बिखर रहा था। बेड पर नींद दराज मुसलसल वरदा रहमान के बारे में सोचे जा रहा था। जब भी दस्तक देकर मामा अंदर आ गई। अगर तुम्हारी वॉच काम नहीं कर रही तो मैं बता दूँ, 5 बज चुके हैं और आंखें खराब हैं। तो उन्होंने इसकी आंखों से हाथ हटाए तो सुर हंकारा आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर कांप गई। आर यू ओके माई सन? नहीं मामा, मेरी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ? अपनी मामा को नहीं बताओगे? उन्होंने अरसल का सर अपनी गोद में रखा। मामा प्लीज़, बस तबीयत ठीक नहीं है। इसने टाला। बेटा कोई बात नहीं, मैं मोमना लोगों से एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। मामा लीव दिस टॉपिक, मैं आपको खुद बताऊँगा मुझे किससे शादी करनी है। तो ये बात है, ठीक है तुम अपनी चॉइस बता दो, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। मामा इसकी पेशानी चूमती उठ गई। असफर, या बाय गॉड, मुझे इससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। जाने क्यों मुझे इस पर रहम आ रहा है, महज हमदर्दी। इस ज़िंदगी में पहली मर्तबा लगता है वो वैसी नहीं थी जो मैं समझा। गाड़ी में बड़ा जमान वो असफर के साथ बरदा से एक्सक्यूज़ करने जा रहा था। रेड सिग्नल पर वो दोनों रुक गए। यूं ही अरसल ने बाहर देखा तो देखता रह गया। स्लीवलेस शर्ट और डीप गले की शर्ट पहने वो गालबन झुककर अपने साथी को कुछ कह रही थी। असफर भी अरसल की नज़र के ताक़ब में बरदा रहमान का सारा मंजर देख चुका था। लम्हा भर को दोनों की नज़र टकराई, फिर दोनों का पुरजोर कहका कई लोगों को इनकी जानिब मुतवज्जह कर गया। बेटा तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो मुझे बताओ, तो मैं इसके वालिदैन से बात करूँ। ऐसी कोई बात नहीं मामा, मुझे इस बेवकूफ़ सनब से कभी मोहब्बत हो सकती है। हमदर्दी रहम तो किसी पर भी किसी भी लम्हे आ सकता है, मगर ये लड़कियाँ महज फ्लर्ट करने के लिए होती हैं। इनसे मोहब्बत हमाकत ही है। वैसे भी मुझे शादी के लिए वो लड़की चाहिए जो बिल्कुल अनछुई हो, जिस्म से लेकर जज्बात तक बोलने मिल सकेंगी, ऐसी लड़की। अरसल ने इनकी आंखों में झांका। मोमना ऐसे ही है, बाहया, वेल मैनर्ड, खूबसूरत, हर लिहाज से तुम्हारे लिए परफेक्ट मिलकर तो देखो। ओके मैं आप कहती हैं तो आजमा लेते हैं इसे भी, मगर मैं बता दूं, अगर वो मेरे शराफत के मैार पर पूरी ना उतरी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। इसने फैसला कुन अंदाज में हाथ उठाए। ओके पापा, बाबा तैयार हैं तो करवाएं।
तैयार तो होकर आओ, बाकी तो बात की बातें हैं, मामा ने थक कर कहा। कुछ ही देर में वो दोनों मोमना के ड्राइंग रूम में थे। इससे गुफ्तगू में मसरूफ इसके चेहरे में जो नरमी थी वह इसके लहजे में भी घुली थी। अगर इसने सर को स्कार्फ से ढक रखा था, शानों पर दुपट्टा फैलाया हुआ था, फिर भी इसके स्याह लंबे बालों की चोटी इसके मशरकी हुस्न में अदाफे का बाइस बन रही थी। दराज कद और मुतनासिब जिस्म के मालिक वो लड़की ज़ाहिरी तौर पर हुस्न के तमाम अजानों की मालिक थी। बस चाय थमाते हुए लम्हा भर को इसकी लाइट ग्रे निगाहें अरसल से टकराई थीं, मगर फिर इसके बाद झुकी झुकी नज़रें अरसल ना देख पाया। मास कम्युनिकेशन में मास्टर कर रखा था इसने और मुकाम फर्म में जॉब करती। यूं ही बार बार चेहरे पर आ जाने वाली बालों की शरारती लुटों को वो बार बार स्कार्फ में ढक रही थी। मेकअप के नाम पर इसके चेहरे पर अरसल की कोशिश के बावजूद कोई चीज़ नज़र ना आ सकी। आज पहली बार अरसल को किसी लड़की की नज़रों में बेबाकी की जगह हया नज़र आई थी। फारग औकात में क्या मशागल है आपके? अरसल का मन चाह रहा था इससे बात करने को। जी, मैंने अलनूर के नाम से अपनी वेबसाइट ओपन की है और मेरी टीम हम चाहते हैं कि लोग अपनी स्पेशली गैर मुस्लिम तक इस्लाम की तरवीज दुरुस्त अकायद के साथ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 6 अशखास को मुशर्रफ बाइस्लाम कर चुके हैं। धीमे धीमे लहजे में बोलती इसकी झुकी झुकी निगाहें अरसल अरफान के दिल में उतर चली गई। मिस्टर अजफर, मैं जानता हूँ ये मिडिल क्लास की लड़कियाँ बहुत प्योर होती हैं। मैं जज्बात के मामले में मोहब्बत शादी के बाद का फार्मूला बचपन से ही इनके जहन में फीड कर दिया जाता है। इंतहाई बाहया और बाकिरदार होती हैं ये। अरसल आज वाकई दिल से खुश था। जी बस यार, मैं दिलो जान से मर मिटा हूँ इस पर। आज मैं समझा हूँ ये मोहब्बत क्या चीज़ होती है। वाकई यार, लोग यूँ ही तो मजनू नहीं बन जाते। मैंने तो मामा से कह दिया, देर मत लगाएं अभी, और आज ही बात पक्की करके आएँ। वो अजफर से फ़ोन पर दिल की बेकरारियाँ बयान कर रहा था। और यार पड़ता गज़ल निशा और जस्ट स्टॉप इट मोमना के साथ इनका नाम लेना भी गुनाह समझता हूँ। क्या बताऊँ कितनी बाहया और बाकिरदार है वो। मेरी क्लास की लड़कियाँ तो मरकर भी इस जैसी नहीं हो सकती। इसी वक्त मामा चले आए और जो कुछ उन्होंने कहा वो हैरान कुन था। क्या कह रही हैं आप मामा? मगर क्यों? वो हैरान था। इनके सामने आया बेटा। वो कहते हैं हमारी बेटी नहीं मानती। मगर मुझ में क्या कमी है मामा? अरसल इस गैर मुतवक्किल जवाब पर पहले हैरान और अब परेशान था। चलो दफ़ा करो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या? मामा ने इसके परेशान हाल चेहरे पर निगाह दौड़ाते हुए कहा और मायूस चेहरे लिए बाहर आ गई। वो अपने कमरे में माही भी आपकी तरह तड़प रहा था। अपने सर को स्कार्फ से ढकते उठते गिरती पलकों के साथ नरम लहजे से गुफ्तगू करती शर्मो हया का पैकर मोमना आजम एक पल नज़रों से नहीं हट रही थी। इसने मुझे क्यों इनकार कर दिया? और इस क्यों का जवाब लेने वो चंद ही लम्हों बाद इसके ऑफिस में था। वही सरप्पा, वही हुस्न, मगर ऑफिस में काम करते हुए वो पहले से ज़्यादा मुहतात थी। आप क्यों आए हैं यहाँ? नागवारी से इसके चेहरे पर साथ साथ इसके लहजे से भी आया थी। सिर्फ ये पूछने कि आपने मेरे प्रपोजल से इनकार कर दिया है। असर के लहजे में हैरत का होना लाजमी था, क्योंकि वो अपने हुस्न और पर्सनालिटी की हशर सामातियों से खूब वाक़िफ़ था। जी हाँ, मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, वो पुरएतमाद अंदाज में बोली। मगर क्यों? अरसल ने हैरत से कहा। क्या मतलब क्यों? क्या समझ कर आपने मेरे लिए अपना प्रपोजल भेजा था? मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ या किरदार में इतना झूल है कि एक ऐसे लड़के को अपना लूँ जो कॉल्स किसी की रिसीव करे और डेट किसी और के साथ? मिस्टर अरसल अरफान, जैसे लड़कों को बाहया और बाकिरदार लाइफ पार्टनर दरकार होता है, ऐसे ही लड़कियों की डिमांड भी बाकिरदार इंसान होता है। किरदार की पुख्तगी एक मर्द के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी एक लड़की के लिए। जस्ट माइंड इट मिस्टर अरसल, बहुत बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो अपनी बेटियों को कमज़ोर किरदार के हामिल अफराद को थमा देते हैं। और मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। आप क्या समझते हैं इस दराज कद, इस डैशिंग पर्सनैलिटी के पीछे छुपे आपके किरदार के जूल को गले से लगा लूँगी। याद रखें, बाकिरदार और बाहया मर्दों के लिए ही बाकिरदार और बाहया लड़कियां तहलीक की गई हैं। अगर आप बाकिरदार और पाकीज़ा नहीं तो बीवी भी आपको कभी बाहया और शरीफ नहीं मिल सकती। अगर ये इस्लामी फैसला आप मर्दों की समझ में आ जाए तो शायद, बल्कि यकीनन कोई भी मर्द किरदार पर कंप्रोमाइज़ ना करे। लब काटता अरसल अरफान जाने सोच के किस पताल में था। और हाँ, फॉर गॉड सेक, दोबारा मेरे ऑफिस मत आइएगा। मैं आप जैसे मर्द से बात करके अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहती। इसका लहजा इंतहाई सहद हो गया था और अरसल अरफान टूटे कदमों से वापस हो गया। मगर आगही का एक तलख और मोमना आज़म ने वाह कर दिया था और वो पछता रहा था। काश ये आगही से ना होती, क्योंकि वो जान गया था किरदार की पुख्तगी एक मर्द के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि किसी लड़की के लिए ये कि नेक मर्दों के लिए ही सालेह और नेक बीवियाँ तहलीक की गई हैं। और इसका किरदार तो मेरी प्यारी बहनों ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।